السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد مہر علی حاضرین کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی جو ہماری نئی ویڈیو ہے وہ ہے پرانے سے پرانا بخار، جیسا مرضی بخار ہو، بڑوں کو ہو، بزرگوں کو ہو، چھوٹوں کو ہو، خواتین کو ہو، بچوں کو ہو، بچیوں کو ہو، جیسا مرضی بخار ہو، پرانے سے پرانا بخار کا یہ علاج ہے اور یہ بہت ہی قدیمی بزرگوں کا نسخہ ہے جو کہ ہم تک پہنچا ہے اور آزمایا ہوا ہے۔ ہمارے جن بزرگوں نے، استادوں نے اس کو استعمال کیا ہے، بڑی تعریف فرمائی اس نسخے کی، اور انہوں نے کہا جی 7 دن کے عمل سے پرانے سے پرانا بخار بھی ہے وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈینگی کا بخار ہے یا ملیریا کا بخار ہے یا ویسے بخار آ جاتا ہے، اور خاص طور پر شوگر کے جو مریض ہیں، شوگر کے مریضوں کو جب کوئی پھورا پھنسی وغیرہ نکلتا ہے تو پھورا پھنسی کی وجہ سے وہاں پر ایک تناؤ سا پیدا ہو جاتا ہے، جہاں پہ دانہ نکلا ہے تو پوری ٹانگ میں درد آتا ہے، پھر درد کی وجہ سے بھی جسم میں بخار ہو جاتا ہے۔ تو ہر قسم کے بخار کے لیے یہ نسخہ کامیاب ہے اور بہت ہی بہترین ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 گلاس پانی لینا ہے۔ 2 گلاس پانی لے کر اس کو اچھی طرح آپ نے گرم کرنا ہے۔ جب وہ پانی 1 گلاس رہ جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ اتارنے کے بعد آپ نے اس میں 5 دانے اناب کے ڈالنے ہیں۔ جو اناب کے دانے ہوں گے، اناب کے 5 دانے جو ڈالنے ہیں آپ نے، ایرانی اناب ہو، پرانے والا نہ ہو۔ جو نئے والا ہوگا نا بالکل پلین ہوگا اور خوبصورتی میں ہوگا اور سرخ ہوگا، اور جو پرانا ہوگا اس میں نشان ہوں گے، دھبے ہوں گے اور کہیں کہیں سے اس میں گرے پڑے ہوں گے، تو وہ والا آپ نے بالکل نہیں لینا۔ بالکل پلین والا آپ نے ایرانی اناب لینا، بڑے والا، خوبصورت جو ہو، اس کی اوپر ایسی خوبصورتی ہوتی ہے کہ چمک پیدا ہوتی ہے، چمک والا آتا ہے، اس میں چمک ہوتی ہے۔ تو پرانے جب یا تو ہو جاتے ہیں پھر اس میں وہ چمک نہیں رہتی، تو تازی جو چیز ہوتی ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہے۔ وہ آپ نے اناب لینے ہیں، 5 دانے اناب کے۔ اس کے بعد آپ نے گربندی بادام لینا ہے۔ گربندی بادام کی 12 گریاں آپ نے علیحدہ پانی میں بھگو دینی ہیں، اور اس کے بعد جب آپ نے یہ چیزیں بھگو دیں، گربندی کے 12 عدد بادام بھگو دیے، اس کے بعد جو پانی گرم کیا اس میں اناب ڈالنے ہیں اور گریاں آپ نے علیحدہ بھگونی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اجوائن جو ہے چھوٹی آدھ چمچی جو ہے اس کا تیسرا حصہ آپ نے ڈالنا ہے پانی میں جو آپ نے بوائل کیا ہوگا۔ اس کے بعد منقے کے آپ نے 7 دانے ڈالنے ہیں۔ 7 دانہ منقے کے آپ نے ڈالنے ہیں، بیج نکال کے۔ پہلے منقے کو اچھی طرح دھو لینا ہے کیونکہ تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس کو اچھی طرح آپ نے دھو کر تو اس کے بیج نکال کر تو جو گرم والا پانی اس میں آپ نے بھگو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے گلو لینی ہے۔ گلو کی 7 ٹہنیاں 1 انگل کے برابر آپ نے 7 ٹہنیاں لینی ہیں، اچھی طرح صاف کر کے دھو کے وہ بھی آپ نے ڈال لینی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے بھگو لی۔ بھگونے کے بعد صبح جب رات کو رکھ دیا، صبح جب آپ نے اٹھنا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بادام آپ نے علیحدہ بھگوئے ہیں وہ بادام لینے ہیں، ان کے چھلکے اتارنے ہیں۔ چھلکے اتارنے کے بعد آپ نے وہ بادام جو ہے، گربندی بادام کی گریاں جو ہیں وہ اس گلاس میں ڈال دینی ہیں جو آپ پکا ہوا پانی ہے اس میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد آپ نے پھر اناب لینا ہے۔ اناب کو اچھی طرح آپ نے نرم کر لینا ہے، اس کی گٹک وغیرہ نکال لینی ہے، جو اس کے اندر بیج ہوگا وہ آپ نے نکال لینا ہے۔ نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے گرائنڈ کرنی ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کا نام لے کر اور الحمد شریف 3 مرتبہ پڑھ کر، پھونک مار کے اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ شافی پڑھ کر، اللہم یا شافی الامراض پڑھ کر آپ نے 3 گھونٹ میں یہ پانی پی لینا ہے۔ پانی پینے کے بعد 1 گھنٹے تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی 7 دن کا عمل ہے۔
7 दिन के अमल के दौरान इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म में पुराने से पुराना बुखार भी होगा, अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी को डेंगू का मसला है तो वो भी यही चीज़ इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक बात आपने याद रखी है कि डेंगू वाला जो मरीज़ है, सफ़ेद बदाना जो है अनार का जो है वो इस्तेमाल करेगा नींबू डालकर, और सेब का जूस इस्तेमाल करेगा नींबू डालकर, और पपीते के पत्ते जो हैं उसका यानी कि आप कावा पिएगा नींबू डाल के, और सुबह निहार आपने नींबू का इस्तेमाल करना है, ये आपने याद रखना है। और वो नींबू जो है आपने इसके ऊपर डालना है, पपीते के ऊपर। जब पपीते के ऊपर आप नींबू डालेंगे और सुबह निहार आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में ही आपका जो डेंगू है वो भी अल्लाह करीम आपको शफा अता फरमा देगा। इसके अलावा किसी भी किस्म का बुखार हो, ये आप बात मेरी ज़रा गौर से सुन लें। जो नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, या घर की बड़ी बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, तमाम से मेरी ये इल्तमास है, मेरी ये आपसे इल्तजा है कि जब भी आपके घर में किसी फ़र्द को बुखार हो तो फिर रोटी का इस्तेमाल नहीं करना, ये बात पक्की है, ठीक है। काली पत्ती का कावा थोड़ी सी सौंफ डालकर वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इस कावे से भी आपका जो बुखार का मसला है वो हल हो जाएगा। सुबह पानी पीने के लिए है, और दोपहर को और रात को सौंफ और काली पत्ती का कावा। काली पत्ती जो आपने चाय वाली है वो लेनी है, लेकिन डब्बे वाली इस्तेमाल नहीं करनी, जो ब्लेंड की होती है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। खुली जो बॉडी वाली होती है वो आपने पत्ती लेनी है, वो मंडी से मिल जाती है, खुली पत्ती आपने लेनी है, ठीक है। पठानों की दुकानों से भी ये आपको मिल जाएगी। तो खुली पत्ती आपने लेकर इसका कावा बनाकर थोड़ी सी सौंफ डालकर, और गुड़ का मीठा करना है या आपने शक्कर का मीठा करना है, तो दोपहर और रात को ये इस्तेमाल करें। इस कावे के इस्तेमाल करने से पहले 3 अदद अंडों की सफ़ेदी इस्तेमाल करें। 3 अंडों की सफ़ेदी इस्तेमाल करने के बाद फिर आप ये कावा पी लें। इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में ही अल्लाह के फजल व करम से आपको अफाका महसूस होगा, और आपके जिस्म में एक एनर्जी आएगी, और आपका बुखार जो है वो उतर जाएगा। बाज़ बंदों के जिस्म में हड्डियों में दर्द आ जाता है, और दिमाग यानी कि चकराने लगता है, दिमाग में ताकत नहीं रहती, कि दिमाग के ऊपर बोझ सा महसूस होता है। तो ऐसे तमाम माम जिस्म में दर्दें वगैरह आ जाती हैं, चलने के लिए यानी कि हिम्मत नहीं रहती, कमर में दर्द आ जाती, इतनी ये खड़ा नहीं हुआ जाता बुखार की वजह, इतनी कमज़ोरी हो जाती है। तो अंडों की सफ़ेदी इस्तेमाल करने से जो आप यानी कि बुखार में आपके प्रोटीन कम होते हैं, जब प्रोटीन कम होते हैं तो आपको कमज़ोरी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अंडों की सफ़ेदी आपकी प्रोटीन को मुकम्मल करेगी, पूरा करेगी, इससे आपको कमज़ोरी नहीं होगी। बुखार आपका जो 2-3 दिन में जाना है, लेकिन वो बुखार आपको कमज़ोरी नहीं करेगा। आप ये आजमा के देखें कि अंडों की सफ़ेदी और काली पत्ती का कावा सौंफ के साथ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद इस चीज़ का यानी कि अंदाज़ा लगा सकेंगे। खुद आपको ये तजर्बा होगा अपने ऊपर कि जब आपने अंडों की सफ़ेदी ली या जर्दी इस्तेमाल नहीं करनी, अंडों की सफ़ेदी ली, ऊपर से ये कावा इस्तेमाल किया, और सुबह वाला जो आपको कावा बताया वो आपने इस्तेमाल किया, इंशाअल्लाह ताला 2 या 3 दिन में ही आपको फाका महसूस होगा। अगर आपको फाका महसूस हो जाए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। मेरा भी ये आजमाया हुआ है, और कई मरतबा अगर मुझे भी बुखार हुआ तो मैंने ये टोटका आजमाया और अल्लाह करीम ने शफा अता फरमाई है, क्योंकि शफा में जान अल्लाह की ज़ात है। तो मुझे बड़ा यकीन है कि जब भी बुखार होता है मैं यही चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह करीम मुझे शफा अता फरमा देता है आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल व करम से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल बैत के सदक़े, सहाबा कराम के सदक़े और औलिया अल्लाह के सदक़े अल्लाह करीम सेहत अता फरमा देता है पीर मुर्शद की दुआ से। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ये यकीन है कि जब भी मेरे घर में या मेरे दोस्तों को या मेरे अपने जानने वालों को बुखार का मसला हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ज़ल व करम से यही नुस्खा इस्तेमाल किया है
किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी अंग्रेज़ी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया। अपनी दवाई जो दी है, अगर नहीं भी दी तो इसी टोटके के साथ का परहेज से यानी किया तो अल्लाह करीम ने उसे शफा अता फरमा दी। तो ये आप याद रखें कि बुखार में रोटी का इस्तेमाल नहीं करना। उसमें आप साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का दलिया ऐसा दलिया है कि इससे आपका बुखार भी ख़त्म होता है जौ के दलिए खाने से, ठीक। और साबूदाना ले सकते हैं, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको शफा अता फरमाएगा। अल्लाह करीम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी चीज़ें अपने बंदों के, अपने महबूब के उम्मत के लिए पैदा फरमाई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शफा है, सबसे ज़्यादा शफा है। कोशिश करें जो अल्लाह करीम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके आप पर करम फरमाया, उस करम से फ़ायदा उठाएं। जो आपके लिए जड़ी बूटी अल्लाह करीम ने अपने ख़जाना गैब से आपके लिए पैदा फरमाई हैं, उसका इस्तेमाल करें। उसका कोई यानी कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सारी जड़ी बूटियाँ नेचुरल हैं, नेचुरल इसकी शिफा है। इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल रिफाइन नहीं है, कोई केमिकल नहीं लगा हुआ। अल्लाह करीम ने ख़जाना गैब से हर चीज़ लगा कर आपके लिए पेश फरमा दी है। आप इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें और ख़ुद अपनी सेहत का ख्याल आप रखें। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये चीज़ें और ये नुस्खा इस्तेमाल करें, अल्लाह करीम आपको शफा अता फरमाएगा। और एक मैसेज है आप तमाम देखने वालों के लिए, वो ये है कि मेरे दोस्त अक्सर मुझे ये कहते हैं कि अपनी वीडियो में आप ये बात ज़रूर कहा करें कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतना ही आपके नाम अमाल में नेकी आएगी। और सदका जारी की सूरत में करें, किसी लालच और हमारी कहने से आप यानी कि ये ना करें कि हमने कहा है तो आपने करनी, नहीं। अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए जिस तरह हम नुस्खे आपकी बारगाह, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और अल्लाह ताला की बारगाह से हमें ये फैज़ मिला है तो हम आपको पेश कर रहे हैं, तो आप इसी नीयत से करें कि किसी का भला हो जाए, ठीक है, और किसी को शफा अल्लाह करीम अता फरमा दे। तो जब किसी बंदे को शफा होती है तो उसकी दुआएं फिर आपको लगती हैं, तो अल्लाह ताला उन पर बड़ा रहम, बड़ा फजल व करम अता फरमाता है। तो आप ये कोशिश करें, इस सदका जारी में हिस्सा लें। अल्लाह करीम आपको कामयाबी कामना अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।